को नहीं अपना पाते। कहाँ गई वो वैल्यूज? इम्पैक्ट ऑन चेंज ऑन चिल्ड्रन, यूथ। परिवार में चेंज हो गया। हम लोग तो पहले एक संयुक्त कुटुंब व्यवस्था में रहते थे, जहाँ सारे फैमिली एक होते थे, दादा दादी मम्मी डैडी सब एक होते थे। पर अब क्या हो रहा है? अब छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिली हो गए, क्राइम वायलेंस ये सब बढ़ चुका है। इफेक्ट ऑफ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो यदि आप देखें तो कितनी सारी और बातें हो रही हैं दुनिया में। द कॉम्पिटिटिव माइंडसेट अमंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, सबको फर्स्ट आना है, किसी को सेकंड नहीं आना है। होलिस्टिक, व्हाट डज वैल्यू एजुकेशन एम एट? सीबीएसई से हमें ये देखा जा रहा है। Holistic development of the child while addressing the head and the heart. Revisiting the values, making everyone aware of eroding values, creating a balance between child and community, and education that connects the heart, the head, and the hand, inculcating the understanding of interdependence between family, society, nation, and the world, bringing in a proactive social consciousness, improvement of the quality of education, harmony, peace with self. So when you see value education, there are challenges before schools. We need to prioritize values education in the curriculum, integrating value education into school activities, defining focus areas, and planning for realizing desired objectives. And as Aristotle the Great has said, the roots of education are bitter, but the fruits are sweet. तो जल्दी देखते हैं वैल्यूज एजुकेशन का मतलब, मीनिंग ऑफ वैल्यूज। Values are defined as everything from eternal ideas and guiding principles that lead to desirable behavior and positive patterns. They provide an important basis for individual choices based on connecting thoughts, feelings, and emotions leading to positive action. It is the process whereby desirable behavior is encouraged, presenting a reward at the time of occurrence of such behavior. Whenever a child does something good, you give a reward. एक स्माइली दीजिए, एक स्टार दीजिए, गुड कहिए, वेरी गुड कहिए, बच्चे को खुशी होगी. It helps to identify the strength of the students. It utilizes the strengths to accomplish tasks. It produces new desirable behaviors. बच्चे को भी लगेगा आज मैंने कुछ अच्छा किया, सर ने या मैम ने मुझे एक स्टार दिया या गुड कहा, अब मैं कल इससे और अच्छा करूंगा तो सर मुझे कुछ और कहेंगे. बच्चा भी मोटिवेटेड रहेगा. Desired behavior will educate a child morally, and so the purpose of value education will be solved. Thoughts, actions, behaviors, values, and character are all brought about by positive reinforcement. And how are we going to internalize values? हम इसको सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे. सोशलाइजेशन, फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, मैच्योरिटी लेवल पे हम देखते हैं वैल्यूज को. एंड रीइंफोर्समेंट थ्रू एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन. व्हाट डू चिल्ड्रन नीड टू नो अबाउट वैल्यूज? वैल्यूज का मतलब क्या है, कैसे अपने लाइफ को वैल्यूज बदल सकती है, और अपने बिहेवियर, अपनी एटीट्यूड पर अच्छी वैल्यूज क्या असर करती हैं, इम्पैक्ट. So value concerns at school stage. We need to develop universal human values. Values derived from Indian Constitution. जैसे अब चल रहा है आजादी का अमृत महोत्सव,
हर घर तिरंगा लहराएगा, नो योर तिरंगा। तो तिरंगा भी तो एक respect for the national anthem, national flag, these are basic constitutional values. Developing problem solving attitude towards contemporary challenges. Holistic development of the school student. Responsible attitude towards the self and society. Nurturing an ethical approach, collaborative skills, and respect for human rights. And when we talk of benefits for value education, there are three basic benefits. One is for academic benefits, where the school enhances academic diligence through a variety of means. बच्चा कितना अच्छा पढ़ेगा. I am not inaudible, Renu ma'am. I am full and loud. I am also. Am I inaudible? क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? Thank you, Anjani Kumar ji. I am audible. Thank you. So, Renu ma'am, please recheck your sound system. Pupil, हर बच्चा, students can focus, work together, and get the most out of their studies using this program. यानी एक स्कूल तो अपने बच्चों को, हर बच्चे को अच्छा बनाने की, अच्छा इंसान बनाने की नैतिकता, नीतिमत्ता सिखाती है, उनको वैल्यूज से इंस्पायर करती है. पर इन वैल्यूज से लेकर बच्चा भी अपनी स्टडीज पे फोकस करेगा, कुछ अच्छी आदतें अपनाएगा, और उससे क्या होगा, हमारी जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें भी अच्छे बच्चे, अच्छे विद्यार्थी आएंगे. सोशल बेनिफिट क्या रहेंगे? स्टाफ और स्टूडेंट दोनों को हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एक दूसरे में रहेगा. शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, कोर्डियल रिलेशंस जिसे हम कहते हैं. इससे बच्चा भी जानेगा कि हमारा अच्छा आंतरिक रिलेशन क्या है, हमें दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, एंड दूसरों के पोटेंशियल को कैसे देखना चाहिए. जैसे एज टीचर्स we see the best in every child, we tap the potential of every child. बिल्कुल वैसे ही हर प्यूपिल को यही पता चलेगा कि जैसे शिक्षक हमने से अच्छी बातें ढूंढ कर हमें खिलाते हैं फूलों की तरह, हमें भी दूसरों की अच्छी बातों को देखना है. समाज में अच्छा मिलेंगे, अच्छे लोग आएंगे समाज में. अगर ये बच्चे जो हमसे सीख कर निकलते हैं वैल्यूज, समाज को अच्छा बनाएंगे, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर भी चलेगा, पर अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए कुछ करेंगे, तब जाके समाज सुधार कर अच्छे नीतिमत्ता वाले लोग बनाएगा. The third benefit are the moral benefits. School can develop when the school culture and school spirit are positive. तो स्कूल ने जैसे निश्चित कर लिया कि हमें इस वर्ष में अपने बच्चों में पॉजिटिवली इतनी वैल्यूज बढ़ानी है. हम देखना चाहते हैं कि एक वर्ष के अंत में हमारे बच्चे कितने वैल्यूएबल बन सकते हैं, कितनी वैल्यूज इम्बाइब कर रहे हैं. तो इस ज्ञान से बच्चे देखेंगे कि हमने जितनी वैल्यूज इंटरनलाइज की हैं, उनसे हम पर क्या असर पड़ा, और समाज में देखा जाएगा कि स्टूडेंट्स कितने केयरिंग हैं, कितने अपने आप को छोड़कर दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, निस्वार्थी है, एंड कितने
अपने प्लैनेट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, students are taught important values like kindness, compassion and empathy through value education. A feeling of camaraderie, which is friendship, patriotism is also promoted, which helps pupils become more open-minded and accepting of various cultures and religious traditions. तो अतुल आनंद जी ने अपना हैंड रेज किया है, आपको शायद कुछ कहना है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको जो कहना है। अतुल आनंद जी, मैंने पढ़ा कि आप किसी स्कूल से हैं, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, आप जो भी कहना चाहते हैं, बबली कुमारी, अतुल आनंद और या जो भी कोई है, चैट बॉक्स में अपना लिखें, हम आपकी बात जरूर पढ़ लेंगे। When students learn about values, they discover their actual purpose in helping society and striving to become the best version of themselves. I think people are using language in the chat box which should not be used. गाली गलौज भी चल रही है चैट बॉक्स में। पाटलिपुत्र सहोदय से निवेदन है कि कृपया इन चीजों पर नजर करें। A sense of awareness is developed which leads to deliberate and satisfying judgments. So एक अवेयरनेस भी बन रही है जहां पर जजमेंट भी डेलिबरेट, सैटिस्फाइंग, खुशी का माहौल बन रहा है, क्योंकि हमने अपने विद्यार्थियों में, अपने बच्चों में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की जानकारी, अवेयरनेस दे रखी है। तो चलिए एक नजर करते हैं पिलर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है उसके पिलर्स, जो स्तंभ है वो क्या है? कैरेक्टर एजुकेशन। यदि बच्चे का कैरेक्टर ही सही नहीं होगा तो बच्चा क्या करेगा? उसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी? He or she will learn to be polite, socially acceptable, because हम कैरेक्टर एजुकेशन से बच्चे को सही करेंगे। हेल्थ एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, it is just as important as physical health. तो हम स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, सूदिंग एजुकेशन, मेंटल एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसी ऐसी चीजें बच्चों से करवाएंगे। Third one is environment education. Each day is filled with challenges, but the environment problem needs special attention. Students may learn about such concerns through environmental education, which is also an important component of value-based education. And finally, the fourth point, personality development. To be a good citizen, one must have decent manners, strong viewpoints. Value-based education programs, students should be encouraged to develop their personalities. कम्युनिटी डेवलपमेंट, जैसे हमने पहले भी बात की, समाज में आप क्या करोगे वैल्यूज लेकर? People are brought together to make the world a better place through this component. समाज सुधार, नेशनल हेरिटेज एंड हिस्ट्री। ब्रिटिश राज्य से हमें कितना सीखने को मिलता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन से हम कितना सीखते हैं। यही तो वैल्यूज है कि 200 साल ब्रिटिश ने हम पर कैसे राज्य किया, और आजादी के 75 वर्ष के बाद हम कहाँ हैं, ब्रिटिश ने हमें कहाँ पहुंचाया और आज हम कहाँ हैं।
अमेरिकन रेवोल्यूशन से हमने कौन सी वैल्यूज सीखी? इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस। जब हम स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसे आज सीबीएसई इतना जोर दे रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जिस चीज पर इतना जोर दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट। आज डॉक्टर बिस्वजीत साहा सीबीएसई से इस टॉपिक के डायरेक्टर हैं। तो इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज टू लिव बाय योर आइडियल्स एवरी सिंगल डे। आपको पता होना चाहिए अपने बच्चों को वोकेशनल स्किल्स या जो नए स्किल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स आए, फैशन स्टडीज वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब में अपने बच्चों को भेजना चाहिए। Young people must deal with stressful events every day. They must learn how to self-regulate their emotions and de-stress. Integrating values fosters learning that may be applied in both your career and personal life. So ultimately, जो भी हम सीखे हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के जो 8 स्तंभ है, इनमें से एक भी स्तंभ हिला तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कंप्लीटली हिल जाएगा। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आप सभी के पास एक पेन और पेपर तो रहता ही है, हर शिक्षक पेन पेपर के बिना आता नहीं कभी। तो अपने बारे में, अपनी पाठशाला में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए, चाहे बच्चा चाहे शिक्षक, जो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है। एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के बारे में सोचे। वो आपका विद्यार्थी हो सकता है या सहयोगी हो सकता है, को टीचर हो सकता है, जो इन्फ्लुएंशियल है। अब आपके पेपर पर उस इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का नाम लिखिए और एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखिए जिसे आप एडमायर करते हैं। आपको उस इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर के बारे में क्या अच्छा लगता है, तो कैरेक्टर का नाम लिखिए और उस कैरेक्टर का एक बिल्कुल लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग, राइटर, नॉलेजेबल, चेयरफुल। तो आप ये अभी उसके नीचे लिखिए कि आप इस कैरेक्टर को क्यों एडमायर करते हैं, क्यों आपको अच्छा लगता है वो कैरेक्टर, और आप उसके जैसे कैसे बन सकते हैं। उस कैरेक्टर जैसे आप कैसे बन सकते हैं, ये भी एक वाक्य में लिखिए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें आ रही है चैट बॉक्स में, कभी फुर्सत से आप चैट पढ़िएगा। प्रोत्साहन, मोटिवेशन, अपने आप को प्रोत्साहित करना, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करना, साइलेंटली काम करना, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। पोलाइट बिहेवियर विद एनीवन, ना किसी को डांटना फटकारना, ना कुछ ऐसा वैसा कहना जिससे किसी को बुरा लगे। तो जब आपने दूसरों के बारे में ये कहा तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, हाउ डज दिस ट्रेट इन्फ्लुएंस यू एज एन इंडिविजुअल। इससे आपको क्या हुआ, आपको क्या लगा।
खुद से काम करना, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. Get positive vibes, changed my perspective. तो अभी तो हम 3000 से भी ज्यादा लोग हैं, पर मैं देख रही हूँ कि बहुत कम लोग चैट में लिख रहे हैं. खुश रहना, ऑनेस्टली काम करना, टाइम मैनेजमेंट, राइटर बने रहना. तो अब ये एक स्क्रीन है जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ. ये देखिए, ये मैसी जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका एक बना हुआ है जो कि चेंजिंग माइंड्स इन वैल्यू एजुकेशन में छपा हुआ है. तो इस चीज का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. प्री मॉरल, कन्वेंशनल एंड प्रिंसिपल्ड स्टेजेस के बारे में चेंजिंग माइंड्स लिख रहा है. उसमें एक बच्चे के माइंड को हम 3 पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं. एक 7 साल तक का बच्चा जिसे इम्प्रिंट पीरियड में डालते हैं. 8 से 13 वर्ष का बच्चा जिसे हम मॉडलिंग पीरियड में डालते हैं. और सोशलाइजेशन पीरियड which is up to 21 years old and even beyond if need be. तो यहाँ मैं आपसे कुछ बातचीत करूंगी. हम मैसीज थ्योरी के बारे में बात करेंगे. So when we talk about Massey's stages of value development, मैसी ने क्या कहा है? मैसी ने इतना ही कहा है कि ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय कंसोलिडेटेड वैल्यूज. और वो क्या बता रहे हैं? इट इज द कंसोलिडेशन दैट प्रोवाइड्स प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. अब इम्प्रिंट पीरियड जो कि 7 वर्ष तक का है, उसमें वो क्या कह रहे हैं? बच्चा क्या करता है? आसपास में जो भी देखता है अपना लेता है, एक स्पंज की तरह. तो यहाँ क्या होता है? यदि आप बच्चे को परेशान करोगे, बच्चा यदि इस पीरियड में परेशान रहता है, तो वो परेशानी भी बच्चा अपना लेता है. Critical thing in this period is to learn a sense of right and wrong. बच्चे को सही गलत की पहचान 7 साल की उम्र में ही बता देनी चाहिए और कभी उससे ज्यादा नहीं ले जाना चाहिए. फिर मासी क्या बताता है? ये जो दूसरा पीरियड आता है, मॉडलिंग पीरियड, जो कि 8 से 13 वर्ष का पीरियड होता है. बच्चे ना अडल्ट्स को कॉपी करते हैं, पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, देखते हैं कि क्या सही गलत. जैसे कुछ हो गया, कोई आता है दरवाजे पर और बच्चा ने पापा को कहता है, पापा फला अंकल आए हैं. तो पापा कह देंगे, बच्चा बोल दो पापा नहीं है, काम पर गए. तो बच्चे ने क्या सीखा? झूठ बोलना. ये एक वैल्यू बच्चा सीख लेता है. तो अब क्या करना है? 8 से 13 वर्ष के बच्चे हमें कॉपी करते हैं. उनको ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यूज नहीं है, इसलिए हमें ऐसी वैल्यूज मॉडल करनी है. हमें एज टीचर्स भी ऐसी वैल्यूज मॉडल करनी है. 13 वर्ष का बच्चा मतलब क्या? 9वीं कक्षा तक का बच्चा जो हमारे साथ होता है, उस बच्चे को भी हमसे ऐसी मॉडलिंग हमने वैल्यूज की करनी है कि बच्चा हमसे कुछ सीखे, टीचर्स से. और बच गए जो 13 से 21 वर्ष के विद्यार्थी हैं, ये क्या होता है? ये लोग मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या तो फिर पीयर ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं.
इन्हें कोई कुछ भी कह दे वो जल्दी मानते नहीं है। ये जो अडोलेसेंट पीरियड वाले होते हैं ये बच्चे भी जल्दी मानते नहीं हैं, उनको वैल्यूज सिखाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैसी की जो सीरीज है मॉरल डेवलपमेंट की, ये हमने एक झलकी में देख ली। यही वाली सीरीज जो मैंने बता दी आपको कि तीनों पीरियड में बच्चा क्या क्या करता है। तो ये दूसरी एक्टिविटी है। इन दिस एक्टिविटी there is a video of a student berating guard which goes viral. ये फिलीपींस मनीला की एक वीडियो की क्लिपिंग है जो कि एक अखबार में आई हुई है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है। अभी a female student berating a female security guard at the railway station has been making rounds in social networking sites, Facebook, Twitter, etc. In the video, the rude passenger posted on Tuesday by a certain name, the student is seen asking the guard if she is accusing her of being a liar. तो बच्चा सिक्योरिटी को पूछ रहा है, क्या मैं आपको लायर, झूठी लगती हूँ? So you're now telling me that I'm a liar, I'm a liar, I'm a liar. उत्तर दो, क्या मैं आपको झूठी लगती हूँ? ये एक न्यूज क्लिपिंग है। अभी इस न्यूज क्लिपिंग की एक्टिविटी क्या है? चैट बॉक्स में आप लिखोगे आपका रिएक्शन क्या होगा यदि आप इस स्टूडेंट के टीचर होते। यदि इस स्टूडेंट के आप अध्यापक होते तो आप क्या कहते इस स्टूडेंट को? सीखो, वेरी गुड। शांति से बात करो, स्नेहलता कुमारी, वेरी गुड। टू बी काम, calm her down and ask her the entire event. Be polite, develop soft skills. Wonderful. Be self-dependent. Brilliant. Don't talk roughly. Absolutely. पहले बच्चे से बात करो, उनको सही सिखाओ कि बोलने का तरीका कैसा है। सिक्योरिटी गार्ड तो अपना काम कर रहा है। बिल्कुल। अब यदि, थैंक यू सो मच, यदि आप प्रधानाचार्य होते, यदि आप प्रिंसिपल होते इस विद्यार्थी के, तब आपने क्या किया होता? एंगर इश्यूज कंट्रोल किए होते। वेरी वेरी गुड। सिखाया होता फ्रेंडशिप कैसे करनी, प्रॉब्लम्स को सोचना और समझना, गुड मैनर्स, वेरी गुड सरिता वर्मा, काउंसलिंग, एंगर मैनेजमेंट, वाओ, और इन्वेस्टिगेट द मैटर, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट। और यदि आप एक रिसर्चर होते, आपने यदि इस टॉपिक में रिसर्च करना होता तो आप क्या करते? काउंसलिंग, फाइंडिंग क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या, डोंट बी एंग्री, इन्वेस्टिगेट द मैटर ऑन बोथ साइड्स, वंडरफुल, रीजन आउट, सॉर्ट द प्रॉब्लम, make an action plan, brilliant, I like that.
Reward positive behavior. Very good. Finding the root cause. Brilliant. Okay. So let us quickly see this. इससे हमने क्या सीखा? ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, जो निस्वार्थ भावना है, सिंसियरिटी, डिलीजेंस, पेशेंस, कामनेस, करेज, हार्ड वर्क, कंपैशन, लव, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, इंटेग्रिटी, एथिक्स, ह्यूमिलिटी, हम्बल होना, अपने आप को चने के झाड़ पे ना चढ़ाना, ये सारी वैल्यूज हम अपने बच्चों में इंस्टिल करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। तो अब हम देखेंगे अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम इन वैल्यूज को कैसे इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यूज पढ़ाने का तरीका कौन सा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज हम क्लास में जाएं और बोले चलिए आज हम वैल्यूज सीखेंगे, तो बच्चे भाग जाएंगे, है ना। अगर हम क्लास में जाकर बच्चों को बोले आज हम वैल्यूज सीखेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम लोग एक स्टार्टर करेंगे डिस्कशन का, ग्रुप डिस्कशन। उसमें कुछ कुछ बातें करेंगे, स्टोरीज बनाएंगे, और उसमें स्टोरी में बात करते 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 वैल्यूज निकलती आएंगी, और जिन वैल्यूज को हम देखेंगे उनको हम बोर्ड पे लिखेंगे कि आज की ये वैल्यूज हमारी हैं। या तो we will think critically about distinctions, comparisons, good practices, examples. We will set examples, analysis, agreement, disagreement, finding criteria and values judgment. इन सब चीजों से हमें वैल्यूज पढ़ानी है। तो जब हम कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो सोशल साइंसेज में वैल्यूज कैसे पढ़ाई जा सकती हैं? Social science, while asking students to write a paragraph or composition, teachers can give topics like how the teachers treat me, class discipline. Instructions in social science should promote values, the ideas of secularism, सर्वधर्म संभावना, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, जो कि हम अपने संविधान से सीखते हैं। भारतीय संविधान में ही ये वैल्यूज इनकलकेटेड है। These should help students develop positive attitudes, acquire knowledge necessary for achieving universal values. Non-violence हमने गांधी जी से सीखा है। Increasing economic and social welfare, ecological stability, तो ये वैल्यूज तो हमें सोशलिस्ट स्टेट से पता चलती है। हिस्ट्री एज अ रिकॉर्ड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड, their achievements, their failures. It focuses on decisions which change the course of progress of mankind. Geography, geography में क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, one world, one family, interdependence. Economics क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमने क्या सीखा? Stress should be on saving money, forming capital, prosperity of the nation, कैसे बचत की जाए। सिविक से क्या हम सीखते हैं? सिविक सेंस, बिलोंगिंगनेस, पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे संभाला जाए जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। रेलवे में चढ़ जाए तो कैसे चेन खींचकर ट्रेन को स्टॉप ना किया जाए। नई नई ट्रेन बनती हैं, नई नई सहूलियतें मिलती हैं, तो कैसे इन सहूलियतों का उपयोग किया जाए और ना कि इनमें से चोरी करके सब तोड़ फोड़ दिया जाए। एंड ड्यूटी, हमें तो सरकार सब देती है, पर ये तो हमारा राइट है, पर उसके सामने हमारी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी इज अ फंडामेंटल वैल्यू। तो जैसे हमने जाना ज्योग्राफी से
टीचर्स को रिवर्स सिस्टम, वेदर, opportunities to illustrate values from nature, interrelation, कैसे नदी आती है जाती है। अब ये पाटलिपुत्र है, मतलब पटना ही है, तो बिहार में कैसे नदियां आती जाती है। हमने सुना है कोसी इज द सॉरो ऑफ बिहार, तो पाटलिपुत्र, झारखंड, आप लोग एक दूसरे के संग मिलजुल कर देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, कौन सी नदी कैसे आती जाती है, फ्लड्स क्यों होते हैं, बारिश क्यों होती है, को एग्जिस्टेंस। आजकल बड़ा ये चल रहा है कि सोलर स्टॉर्म आ रहा है, उससे क्या हो सकता है। ज्योग्राफी के बारे में आप गेम्स ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एक हमने इमेज यहाँ लगा रखा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी गेम्स। वैसे आप गेम्स भी बना सकते हैं जिससे वैल्यू एजुकेशन हो सकता है। डिस्कवरी गेम्स, मैप ड्राइंग, एनवायरनमेंट गेम, क्विज, रोल प्ले, ब्रेनस्टॉर्म, ऐसे ऐसे तरीकों से भी वैल्यू एजुकेशन हो सकता है। अब यदि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा होती है, हमने सुन रखा है, तो फिर आप क्या करोगे? लैंग्वेज टीचर है, इंग्लिश, हिंदी या जो भी आपकी मातृभाषा है, लैंग्वेज टीचर्स क्या करेंगे? लैंग्वेज टीचर्स प्रोबिंग क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट्स, इन सब से इंटरेस्ट क्रिएट करके वैल्यूज निकालेंगे बच्चों से। जैसे हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बड़ी फेमस पोएम है, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. इससे क्या हो रहा है? पर्यावरण के लिए अच्छी वैल्यूज क्रिएट हो रही है, सेंसिटिविटी, लव, सिंपैथी, जेलसी निकालकर, हेट्रेड निकालकर प्रेम भावना बच्चा सीखता है। हिंदी भाषियों के लिए जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, जिसमें ह्यूमन स्पिरिट अगेंस्ट ऑल ऑड्स है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, उनके बारे में भी अच्छी अच्छी वैल्यू वाली कविताएं हैं, जिसमें नेशनलिज्म का एक सेंस बढ़ता है। सुमित्रा नंदन पंत हैं, उनकी कविताओं से भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। या फिर दिनकर जी हैं, या सोहनलाल द्विवेदी हैं, उनकी कविताएं भी बड़ी अच्छी होती हैं वैल्यूज के लिए। या एंशियंट हिंदी लिटरेचर आप पढ़ोगे तो इतने वैल्यूज से भरा हुआ रहता है कि आपको एक अलग, यस डॉक्टर आनंद कुमार, हम मनुष्यता की बातें करेंगे। जब हम लाइफ साइंसेस की बातें करेंगे, साइंस की क्लास, तो लाइफ साइंसेस में क्या हो रहा है? साइंस टेक्स्ट बुक्स में ये रिफ्रैक्शन के बारे में बड़ी बड़ी बातें होती है, बट बच्चा इससे क्या सीखता है? कल्चरल बायसेस टुवर्ड्स अदर्स एग्जाम्पल्स से सीख कर बच्चा समझ जाएगा। रिफ्रैक्शन से, पैरासाइटिक प्लांट से क्या होगा? नेचर की इंटरडिपेंडेंस पता चलेगी। ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल स्किल्स, कंपैरिजन, ये सब छोटी छोटी बातें बच्चा सीखेगा कभी जब एक्सपेरिमेंटेशन होगा। मैथमेटिक्स सबसे बुरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, कभी दिमाग में उतरता नहीं पर काम सबसे ज्यादा देता है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है? प्राइमरी स्कूलिंग, मिडिल स्कूल, सीनियर स्कूल, इन तीनों फेजेस में हम मैथमेटिक्स को जल्दी से देखते हैं। वहां पर अब प्राइमरी स्कूल में शेप्स वगैरह पढ़ाते हैं, तो सर्कल एंड स्टार, एक्यूरेसी, इन वैल्यूज पे डिपेंड होता है। मिडिल स्कूल में प्रॉफिट, लॉस, वेजेस, बच्चा जानेगा कि क्यों किसी के पास जैसे एक आदमी इतना काम करके 10 रुपया रोज ही कमाएगा,
पर एक औरत उतना ही काम, वही काम उतने ही घंटे करके 7 रुपया क्यों कमाएगी? तो ये जो पॉइंट्स है ये हमें मैथमेटिक्स से मिलेंगे। इक्वालिटी ऑफ वेजेस में टीचर्स, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड लेबर इश्यूज, वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट, कैलकुलस वगैरह से भी अलग अलग चेंजेस टीचर्स दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को। इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो places and digits written under them tell us about the order and discipline. We learn about attentiveness. Borrowing tells us about sharing, caring, kindness, cooperativeness, and honesty. Spaces tell us about cleanliness and discipline. Minuend, like a person, should be grateful when getting one number, something from the other. So other examples, happiness should be multiplied and sorrows to be divided. तो अच्छे से हम मैथमेटिक्स से कितनी सारी वैल्यूज सीख गए। आर्ट एंड कल्चर, जो कि हम फाइन आर्ट बोलते हैं, हम आर्ट इंटीग्रेशन करते हैं, ये भी तो हमें कितनी सारी वैल्यूज सिखा जाते हैं। So through art and culture we challenge the stereotypes. कविताओं से भी सीखते हैं, बिल्कुल सही बात। हम लोग बच्चों को परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, कितनी सारी चीजें दिखाते हैं जिससे बच्चा अपने आप अलग अलग आर्ट एंड कल्चर रिप्रेजेंट कर सकता है। एज ए स्कूल हम लोग मॉर्निंग असेंबली में, खेल खेल में, मॉर्निंग असेंबली में इलेक्शन, ओथ टेकिंग, पार्लियामेंट, प्रीफेक्ट बोर्ड, कल्चरल एक्टिविटीज, ये सब करते हैं। नेशनल डेज, फेस्टिवल्स, इंटरनेशनल डेज, फंक्शंस, इससे हम कौन सी वैल्यूज लाते हैं? परफेक्ट लीडरशिप, इंस्पिरेशन, एम्पावर द स्टूडेंट्स, शेयर्ड विजन, लीडरशिप, चेंज। जब हम देखते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी राजपथ पर परेड होती है, स्कूल के बच्चे ऐसे परफॉर्म करते हैं। इट इज द स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन दैट मैटर्स। ये पार्टिसिपेशन से कोई जीत हार नहीं है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसे देखिए, कहीं ना कहीं हमें रुकना है, सोचना है, फिर एक्ट करना है। स्टॉप, रिफ्लेक्ट, एक्ट। और जैसे ही हम सेशन के एंड की ओर बढ़ रहे हैं, तो हर स्कूल को, हर संस्थान को एक वैल्यू एजुकेशन इवैल्यूएशन प्लान बनाना है। हम उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे देखेंगे कि ये वैल्यूज बन रही है, and how are we going to implement them? So some of the basic assumptions, planning and focusing on the values, broad questions that should be kept in mind while preparing and evaluating the school plan. What the school proposes to achieve in terms of value education? What educational experiences can you provide? How could these be meaningfully integrated with the curriculum? And how the school ensures to achieve them. So you can take your students for heritage pathways or heritage walks. You can also have value charts, value record copy, habit box, monthly value-based themes. So value charts, I am polite, respectful, honest, बच्चा हर दिन अपना अपना ये करेगा. Value record, my good habits, my bad habits, everything the child will write. Habit box, अपनी स्लिप पर गुड हैबिट, बैड हैबिट एक पेपर पे लिखकर बॉक्सेस में डालेगा. गुड हैबिट बॉक्स, बैड हैबिट बॉक्स, अपने नाम के साथ.
फिर ऐसे लगता है मंथली थीम होती है। आज इस महीने हम पोलाइटनेस के बारे में बातें करेंगे। तो स्कूल असेंबली से लेके एटीट्यूड, वैल्यूज, बिहेवियर, सब चीज में हमारी थीम पोलाइटनेस या ऑनेस्टी या काइंडनेस या ग्रेटफुलनेस रहेगी। और हर बच्चा इस चीज की कॉपी रखेगा। तो प्री इंटरवेंशन में people have their opinion sheets. In my opinion, this is work done by students, value charts. Post intervention, I'm obedient, respectful. My good habits, I was polite to. Values, I applied. और फिर हाँ, as a teacher, this can be our graphical interpretation. Percentage of polite or alert or respectful or whatever values we have taken, pre-test, post-test. Then the findings can be listed. You can actually list your findings here. The CBSE in the curriculum of 2022 talks about learning skills, literacy skills, and life skills, which must be included in value education. And finally, a valuable experience is what ultimately supports our students. So thank you so much, Patliputra Sahodaya, for hosting me this afternoon. Thank you, Dr. Rajiv Ranjan Sinha, for inviting me, the entire technical team, and all you wonderful participants for having me here with you this evening. I would also like to take this opportunity to thank Shri Tarun Kumar Sir, Deputy Secretary and Head, CBSE Center of Excellence, Patna, for bringing us together in this wonderful session. I hope you enjoyed the session. The last I had seen was we had crossed the 3,000 mark on participation. Thank you very much for being with me this afternoon. Over to you, sir. आप सभी को धन्यवाद। Thank you. I'm glad that you all liked the session. आपकी अनुमति लेकर इस सेशन को मैं क्विट करती हूँ। टेक्निकल टीम